From which school you are? From which school you are? Doon International. Where it is here only? In Jammu. Very little idea about Jammu. So you wanna opt for medical or non-medical? That I know. You want to opt for medical or non-medical? Medical. Today only you have taken admission. Today only you took admission. Pardon? Acha, you are not from Jammu? From where you are? Doda. Acha, Doda also in Kashmir only. In Jammu Kashmir only, Doda. Yeah. Good evening, everyone. Please turn on your cameras. Hope I am visible and audible. Please turn your cameras on so that we can start the class. I'm good, beta. First, turn your cameras on first. Only two. Where are the others? Only two, Vanshika and Namish. What about the others? My voice is extremely low. It would be high eventually as soon as we start the class. Now, I hope my voice is clear. You can listen. I'm audible now. Hope I'm audible now. Okay. Chalo, better turn your cameras on so that we can start the class. First. First, only two I can see, Namish and Rijul. What about the others? Have you started the syllabus? No. Why you are late? You are late. This is okay, but you know the syllabus and everything. CBSE student though, so you will have started because no issue. See only Rijul, Shireen, and Vanshika. Rest are nowhere. बाकी लोग कहीं दिख ही नहीं रहे मुझे. Ashit. What about the others? Arnab, Kavya, Vanshita, Vansh, Pranav, Mridul, Tejasvi, Harshita. Where you people are? Pranav, chalo. Everyone is okay. Turn fast, turn on fast. But I was planning to start the literature in offline mode only, but as I even don't know that how the situation will be in future, so we will start from today. आज से हम लिटरेचर भी थोड़ा बहुत शुरू कर लेंगे, ठीक है ना, पैरेलली करते रहेंगे.
बाकी लोग बेटा जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी। फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली वी विल स्टार्ट, शुरू से करेंगे, है ना। द फर्स्ट पोएम दैट यू पीपल आर हैविंग, द रोड नॉट टेकन, वी विल स्टार्ट विद द पोएम द रोड नॉट टेकन, ठीक है। पहला क्लास है तो पोएम से शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग फिर प्रोज पे चलेंगे। Have you? I have connected a USB webcam with my PC, but there is an error coming in Zoom that unable to detect the camera. Okay, Arnab, I understood. ठीक है, कोई बात नहीं, बी कनेक्टेड। बाकी लोग कहाँ हैं, जल्दी से बेटा, यू पीपल आर गेटिंग लेट, जल्दी से जल्दी से। वेर इज निखिल, हर्षिता, तेजस्वी, मृदुल, वंश, काव्य, वेरी पीपल आर, वंशिका, वंशिता, वेरी पीपल आर, कहाँ हूँ आप लोग? Have you read the poem The Road Not Taken? पढ़े हो Road Not Taken? In 7. सेवन में कभी इस कुछ कुछ लोगों के पास 8 में भी है। हाँ, हो सकते हैं। How many of you read the poem The Road Not Taken? Road Not Taken के बारे में मुझे कोई कुछ बता सकते हैं? Yes, बेटा, who is asking? Is it Nikhil? मृदुल? Yes, आप आ सकते हो। If you wanna attend the offline class, someone is sitting in front of me right now, है ना। आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप आ सकते हो, ठीक है। Yes, अर्नब, करेक्ट। Anyone else? आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ पता है? Have you heard about, read or heard about Robert Frost anything? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानते हो? वंशिका शर्मा, what do you know? Tell me, tell us actually. I'm not talking about the poem right now directly. I'm asking about the poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोगों को किसी को कुछ पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या है? Actually, this particular poem symbolizing the life of Robert Frost himself. ये आपने कभी, आपको पता है कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के साथ मैच होता है, उनके खुद के लाइफ के साथ मैच होता है। ये उन्होंने मजाक मजाक में लिखे थे। वन डे ही वाज ट्रैवलिंग समवेयर विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उन्होंने अपने एक किसी दोस्त के साथ वो घूमने जा रहे थे, और exactly the situation that is being described in the poem, the same thing happened with them. They were standing at a place जहाँ से रास्ता दोनों तरफ में चले गए, और वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरफ जाए, ठीक है, ये था। एंड आफ्टर दैट, yes बेटा वंशिका, I can do that, just a minute, do one thing. Just a minute, beta. Give me a second. If you wanna give me answer, na, you can unmute yourself and you can give me the answer. No issue. अब मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है ना? यस सर। पर जिसको भी आंसर देना है एक एक करके एक साथ सारे लोग नहीं बोलो। मुझे अब बताइए किसी को। यस बेटा, यू आर सेइंग तो नाम है हमारे कोई अलग नहीं है, तो नाम है इसके लिए हमारी लाइफ से क्या तो समझा है कि कोई भी हम बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक्चुअली जो पॉइंट है जब हम
जब उस पॉइंट से आते हैं जो पॉइंट से उल्टा निकला तो टू वेज मार्क मिलती है गुड रूट हो सकता है और बैड हो सकता है हम नहीं जानते बट उसके लिए गाइड होता है और एक रूट ऐसा होगा कि जो पे बहुत सारे रूट चले हैं जैसे एक चीज हमने चूज किया कि हमारी one is less trodden by, another one is grassy road. एक्सेस है रूट होगा जो बहुत हार्ड होगा जिसकी वजह से बहुत सारे बंदे उसको निग्लेक्ट करते हैं तो अब हमारे को चूज करना पड़ता है कि और हम एक ही बात चूज करेंगे हमारे को चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा हमारा रूट में कोई किस सिचुएशन में जो कोई काम है तो भी Yes, almost correct. ठीक है, लगभग सही है. And this is what I told right now. बेटा सारे लोगों का कैमरा बंद हो गए अचानक से. कैमरा ऑन करो जल्दी से. First. The cameras must be on. Look, someone is sitting in front of me and he has given a very good answer. तो आप लोगों से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो. This is actually an extended metaphor of life. The poem is actually an extended metaphor of life. लास्ट डे हम लोगों ने मेटाफोर मैंने करवाया था. व्हाट इज मेटाफोर? Who will tell me what metaphor is? I'm coming to you. Who will tell me what metaphor is? Metaphor we did in our last class. This Metaphor is as one of the extended metaphor. Sir, metaphor is the comparison of a non-living thing with a human being without What using. What kind of comparison? किस तरीके का comparison है? Sir, the comparison of the we can say, sir, giving human art, sir, qualities. Without conjunction. Arnab Bali, without conjunction means? Sir, can What I? is conjunction? It is not without conjunction. Metaphor बताओ. सर मेटाफोर साहब दो मतलब Sir, may I? एक मिनट बेटा, एक मिनट, कोई बता रहे हैं? हाँ बताओ. इसमें हम दो चीजों को या दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करते हैं बस वो इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो उनको बेसिकली जिधर वो शो नाम हो की डायरेक्टली को कंपेयर हो रहे हैं तो डायरेक्टली हम शो नाम करेंगे हिंदी से भी कर रहे हैं और डायरेक्टली शो नाम हो कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं. ओके नहीं अर्नब, आप जो बोल रहे हो इसको सिमिली बोलते हैं. लाइक जो Sir, can I answer? लाइक से मेटाफोर और सिमिली दोनों कंपैरिजन होते हैं व्हेन वी कंपेयर एनी टू थिंग्स. Sir, can I? Sir, can I answer? यस बेटा, बताओ. Sir, metaphor is a. Sir, can I answer? Metaphor, tell me what metaphor is. So, metaphor is a. So we can say that a metaphor is a speech in which a word or the. So metaphor is a figure of speech in which a word is applied to an object or an action to which it is literally applicable. ऐसे बोलोगे, ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर ये आपका जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच के लिए एप्लीकेबल है. स्पेसिफिकली मेटाफोर में क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक है ना, कोई भी दो चीज की जब कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में हम लोग एज या लाइक ये दोनों शब्द का यूज नहीं करते हैं. Without the presence of as or like, if you are comparing any two object with the presence of as or like, then it is simile. ठीक है ना, तब हम उसको निखिल, you will get the chance, you will get the chance. तब हम लोग उसको simile बोलते हैं. When we compare any two things, ठीक है ना, तब हम लोग उसको simile बोलते हैं जब हम लोग as या like के साथ उसको compare करते हैं. If we compare any two things without the presence of as or like, then this is considered as metaphor. ठीक है ना. This particular poem is also a kind of what you said that ma'am compared it with our life. It is actually a comparison between the life and the poem. ठीक है ना. ये poem जो है, this is an extended metaphor of life. Life को ही compare किया गया है through this poem. इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, निखिल, yes you were about to say me something, बताओ.
निखिल आप कुछ बता रहे थे, बताओ। सर मैं मेटाफर का बताना चाहता था सर, वो बता दिया सर। अगला क्वेश्चन पूछना सर, मेटाफर अगला क्वेश्चन पूछना सर, अगला क्वेश्चन पूछना सर। ओके ओके, चलो मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये माना जाता है दिस पोएम एक्चुअली shows the reality of the life of रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब अपना करियर शुरू किए थे, ही वाज अ टीचर, ठीक है। उनके पास फार्म था एक, थोड़ी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे बट थोड़ा बहुत उनके पास प्रॉपर्टी भी था। ही वाज अ टीचर और उनके पास एक सर्टेन लाइफ था, ठीक है। उनकी जो करियर बोलो, पैसे बोलो, उनकी वेल्थ बोलो, एफ्लुएंसी बोलो, सब कुछ ठीक ठाक था। बट ही वांटेड टू बी अ पोएट एंड ऑथर, ठीक है। उनको मतलब एक लेखक बनना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर मैं ऐसे ही घिसता रहूं, ऐसे ही टीचर बनते रह गया या फार्मिंग करते रहेगा तो फिर मेरा लेखक बनने का जो सपना है वो कभी कहीं ना कहीं मतलब सफल नहीं होंगे। सो आई मस्ट माई पुट फॉरवर्ड माई बेस्ट फुट, ठीक है, मेरा Excuse me, बेस्ट sir. देना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी जो खेती वगैरह है उनको बेच दिया, फार्म उन्होंने बेच दिया, नौकरी छोड़ दिया और वो पैसों से वो चले गए, बिकॉज यू नो द हब ऑफ लिटरेचर किसको बोला जाता है? Excuse me, sir. हाँ, So can you please tell when Robert Frost was born? I'm not able to understand, but what are you asking? So I'm saying, can you please tell what is the birth rate of Robert Frost? Beta, your voice, just speak a bit louder. So what is the birth date of the Robert Frost? I'm coming to that. I'll give you all the details. I'll send you a note, ठीक है ना? ऐसे करके मैंने आपको एक नोट भेजना है जिसमें ऑथर की डिटेल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगे। हम लोग अभी डिस्कस ना वही चीज कर रहे हैं जो हमारे लिए क्लास के लिए, देखो हम जो मानो जो डेटाज है ना, जो आप आराम से लर्न कर सकते हो, उसको लेके समय खराब नहीं करना है, हम बस उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट यू कैन नॉट फाइंड इन द रिटन स्ट्रीम, ठीक है ना? आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, डेट मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको लर्न करना है, ये सारी चीजें आप करके रख लेना। मेरे पास यहाँ पे है भी, उस पर हम जान ही रहे हैं। मैं आपको जो चीज बोल रहा था मैं भूल गया। या तो उन्होंने क्या किया, हब ऑफ लिटरेचर माना जाता था तब इंग्लैंड को, तो उनको लगा कि चलो हम इंग्लैंड में चले जाते हैं, एंड बिकॉज माई नो वन इज गिविंग वर्थ टू माई वर्क, ठीक है ना? यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, इस चीज को कोई भी यहाँ पे उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन पर्सन। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो चले गए, सब कुछ बेच बाच के जितना पैसा उनको मिला था वहां पे चले गए। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां पे भी उनको कोई भी मतलब उस तरीके से श्रेय नहीं मिला, और जिसको हम बोलते हैं कि आभार जो है वो उनको नहीं मिला वहां पे। एंड ही केम, ठीक है, वो फिर से वापस आ गए, आके फिर से ऐसे कर रहे हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उनकी पूरी लाइफ में उनको जो चीज चाहिए था, जो ख्याति चाहिए था, उनको नहीं मिला था। जो सम्मान, जो ऑनर, द ऑनर ही रिसीव्ड, इट वाज पोस्थुमस। पोस्थुमस, you heard the word posthumous. What is the meaning of posthumous? posthumous का क्या मतलब होता है? in Hindi is known as मरणोत्तर, मतलब मृत्यु के पश्चात, मर जाने के बाद उनको जो भी ख्याति मिला था ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जो आज हम जानते हैं, ये सारी चीजें उनके डेथ के बाद ही उनको मिला है। उनका जो श्रेय मिला है, लोग उनको जब वो जिंदा थे, जब वो लिखते थे, उस समय पे उनको कोई भी उस तरीके से नहीं पूछा जो आज उनको, जो सम्मान उनको मिलते हैं। तो मैं आपको एक बार, अर्नब यस करेक्ट, आफ्टर डेथ मैं एक बार आपको एक चीज, पोएम थोड़ा सा बता देता हूँ। पोएम को, पोएम का जो आउटलाइन है ना उसको एक बार बता देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द पोएम। पोएम में क्या होता है, एक बंदा चल रहा था, चलते चलते, मैं आई एम वेरी सॉरी, बोर्ड यूज करना है तो मुझे उठना पड़ेगा, मैं अगर उठता हूँ तो फिर आप मुझे देख नहीं पाओगे,
ठीक है ना। तो फिर मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। वाई देखे, वाई 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 जानते हो ना, जो वाई का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ऐसे दोनों चीजें हैं ना, ये जो वाले पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे आके वो खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से रास्ता दोनों तरफ में डिवाइड हो गया था। द रोड इज बाइफरकेटेड। तो फिर दोनों तरफ से चले गए थे। वो वहां पे खड़ा होके सोचने लग गए कि मैं किस तरफ जाऊं, ठीक है ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं। फिर बहुत टाइम उन्होंने सोचा, दोनों रास्ते के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। एक रास्ता देख के लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग चले हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, और एक रास्ता देख के ऐसा लग रहा है कि ये अनट्रोडन है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। फिर उनको लगा कि एक काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग गए हैं वो बहुत कॉमन कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ है, उसमें नहीं जाते हैं, हम उस पे जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जिसको ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। ही डिसाइडेड, और कुछ लाइनें यहाँ पे है जो मैं लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आऊंगा। ही रोट समथिंग कि जो भी डिफरेंस आज मेरी लाइफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चॉइस दैट आई हैव मेड। जो चॉइस हमने उस दिन लिया था, उसी के चलते आज जो डिफरेंस मेरी जिंदगी में है, उसके लिए जिम्मेदार वही है। अब मैं आपको बता दूं उसने क्या डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन लिया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? So he has taken the less traveled road. No, in his real life, what was the decision? To become So a that poet. to be the poet. And going to Germany. To follow the path of the uncertain career. पोएट बनना कोई सर्टेन फिक्स करियर तो नहीं है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई स्पेसिफिक जो आज के डेट में ऑक्यूपेशन है, ऐसा चीज तो नहीं है। पोएट बनने के बाद वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट, नो वन नोज, बिकॉज whosoever writes considers that I write the best. जो भी लिखते हैं उनको लगता है मैं सबसे अच्छा लिखता हूँ, लेकिन सामने वाले ऐसा सोचेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और सामने वाले अगर ऐसा नहीं सोचता है तो फिर एज an author or as a poet you can never be a successful one, है ना। and he wrote something else also, what, कि मुझे पता है दोनों रास्ते में जाने के लिए टाइम जितना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू ट्रेवल बोथ द रोड्स। एक बार अगर मैंने अपनी जर्नी एक किसी स्पेसिफिक वे में शुरू कर दिया, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे लगे कि नहीं भैया दिस पर्टिकुलर रोड इज नॉट दैट मच एक्साइटिंग, आई कैन नॉट कम बैक एंड स्टार्ट माय जर्नी वन मोर टाइम फ्रॉम द पॉइंट आई हैव स्टार्टेड बिफोर। ओके, ये उनको पता था एंड ही रोट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द पोएम। पोएम में ये चीज उन्होंने लिखा है। समझ में आ गया? व्हाट डज दैट मीन? मैंने आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स बताए, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? नहीं, अपने लाइफ में उन्होंने नहीं लिखा था। ये जो है वो एक दिन एक बंदा था जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस, ठीक है। एडवर्ड थॉमस करके उनका एक दोस्त था जिनके साथ वो चलते चलते ये सिचुएशन पे आया और उन्होंने जोकिंगली ये चीज लिख दिए थे। बट ये माना जाता है, क्रिटिकली ये माना जाता है, दिस इज एक्चुअली उनके लाइफ में हुआ। हाँ, एक्चुअली उनके लाइफ में हुआ क्योंकि Sir, actually he was एक मिनट, someone is giving me answer, then after that I'll give you the chance to answer, okay? अपना फॉर्म और जितना प्रॉपर्टी वगैरह था और अपना जॉब छोड़ के कोई की तरफ जाना, मतलब कोई की तरफ अपना सारा मतलब कोई लाइफ गुजारना, वो डिसीजन लिया था। और ये मतलब उसकी चीज ये है कि पोएम में कोई ने बताया कि एक ऐसा रास्ता जिसपे कोई नहीं चला, कोई नहीं, मतलब बहुत कम लोगों ने चला वो रास्ता चूज करना, एक डिफरेंट ओपिनियन होगा अपने, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी सारे एक ही होते रहेंगे। तो उसने एक डिफरेंट वे चूज किया अपनी लाइफ को स्पेंड करने के। और वो वे जो है वो अब उसको पता नहीं था कि वो सक्सेसफुल होगा या उस वे में क्या नहीं होगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या हुआ था कि उनके जीते जी तो उनको वो सक्सेस नहीं मिला था,
ठीक है, इसका दो पहलू है, ये पर्टिकुलर पोएम की ना दो पहलू है। एक तो डायरेक्ट वो जो बंदा था, मैंने आपको नाम बोला एडवर्ड थॉमस, उनको उन्होंने भेजा भी था ये पोएम, और उनको वो भी एक पोएट है, उनको समझ में नहीं आया, पर वो पर्टिकुलर पहलू पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज यू आर स्टडीइंग ओनली इन क्लास 9, तो आपको वो चीज नहीं चाहिए, दैट इज समथिंग क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। हम उनके लाइफ के साथ जो रिलेशन है वो हम बस एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। ये वंशिका बेटा बताओ। Sir, I was saying that the poet has the poet means to say that in life we have to take some difficult choices that depends on our future. Yes. And sir, in this poem, the poet has written that when we have the two choices in our life, and we don't know which way we have to choose, so then we should make our choice and make it so make it so perfectly that we do not have any problem in our future. And sir, in this poem, that poet wants to say that our choices that we make today will be making our future, Deciding factor for tomorrow. Yes sir. ओके, चलो आपका आंसर मैं ले रहा हूँ, डेफिनेटली समहाउ यही है, लेकिन कोई कुछ और बोलना चाहेगा, फिर हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। अर्नब बाली, आई थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, डू यू वांना एक्सप्रेस, आप बताना चाहते हो? एक मिनट, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, मुझे लग रहा है। नहीं, पोएम के बारे में ही पूछ रहा हूं मैं। नो, चलो इट्स ओके। हाँ बेटा बता। Exactly, a right decision at a right time can change your future, can mold your future. आपकी जो future है वो completely किस पे depend करता है? The choices that you have made. ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सीबीएसई ने ये डायरेक्टली आपके पोएम के साथ नहीं है, थोड़ा सा देखो, व्हाट इज लिटरेचर, हाउ कैन यू एक्सप्लेन लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, कैसे बता सकते हो, व्हाट इज लिटरेचर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं भैया, दो चार पोएट्री और दो चार प्रोज ऐसे ही दे दिए, उसको लेके हम समय क्यों खराब कर रहे हैं? व्हाई, व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या है? In one sentence, what is literature? क्या होता है लिटरेचर? Anyone? साहित्य को समाज का दर्पण बोला जाता है, इट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो है ना, इट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, और समाज का दर्पण बोला जाता है। तो समाज में जो भी चीज होता है ना, एक बात बताओ, कोई भी बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी बुक में कुछ लिखा होता है, वो आता कहाँ से? हमारे चारों तरफ से जो होता है, जो भी ऑथर हो, पोएट हो, जो भी हो, कहाँ से लिखते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं इस चीज का? समाज से ही लेते हैं ना, आपके चारों तरफ से जो भी चीजें हो रहे हैं उसी से ना लेते हैं वो। ये भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है। एंड नंबर 2 इज व्हाट, इफ यू कैन रियली एबल टू अंडरस्टैंड what is the message that is being conveyed by the author, whether poet or the author, then only the purpose of that particular literature is successful. ये जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये पढ़ के अगर आपको समझ में आए कि इसके पीछे रीजन क्या है, then only the means purpose of that particular piece is successful. हम लोग अब शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। टू रोड्स, मैं भी मतलब लाइन के साथ साथ आपको प्रॉपर जो चीजें हैं उनके साथ क्या क्या हो रहे हैं सारी चीजें बताते जाऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down as one as far as I could. यहाँ पे अंडरलाइन करोगे long, आप सबके पास बुक है, आई होप you people are having Yes, book? sir. बेटा सबके पास बुक है, बुक निकाल लो।
Yes, sir. है ना? Underline long I stood. Two roads diverged in a yellow wood. ये जो है इसमें long I stood, एक सबसे पहला जो दो लाइन है ये तो डिस्क्रिप्शन है कि yellow, what is yellow wood? It depicts autumn Yellow season. wood. Sir, it depicts the autumn system. हाँ Sir, autumn. Season. YELLOW, yellow. Sir, autumn. Yellow wood. Autumn season. Yes, it is the time of Autumn season. एग्जैक्टली तो ये सारे जो वर्ड्स है ना इसके भी बहुत, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊं, देन परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम. दिस इज अ पोएम, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंक्लूड दिस पर्टिकुलर पोएम इन देयर सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन. ये जो पोएम आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हो, ये बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में. इतना इंपॉर्टेंट पोएम है तो फिर हम आपको उतना डेप्थ में तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, सिर भारी करके कोई नहीं है. एक बंदा क्या कर ऐसे बाइफर्केट हो गया एक रास्ता आके, तो वो यहाँ पे खड़ा होके सोचने लग गए. व्हाट आई टोल्ड टू अंडरलाइन लॉन्ग आई स्टूड. व्हाई मैंने आपको अंडरलाइन क्यों करने के लिए बोला लॉन्ग आई स्टूड? लॉन्ग आई स्टूड को क्यों बोला? So, लॉन्ग because बोले तो बहुत टाइम तक हम वहां पे खड़े रहे ये सोचने के लिए कि हम जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे या मुझे राइट में. व्हाट दैट पर्टिकुलर वर्ड लॉन्ग सिग्निफाइज. लंबा समय तक हम सोचने लगे. अब मुझे बताओ इन योर लाइफ एज आई आस्क्ड यू कि भाई व्हाट यू आर ऑप्टिंग, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ये डिसीजन क्या आप एक दिन में ले लिए थे, एक बार में एक झटके में अचानक से ले लिए थे कि भैया मुझे तो मेडिकल में जाना है या तो मुझे नॉन मेडिकल में जाना है या तो मुझे वकील बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे IAS बनना है, एक झटके में कोई ले सकता है क्या? इट टुक टाइम, यस और नो? इसके लिए आपको समय लगा था. बेटा व्हाई योर कैमरास आर नॉट ऑन? ओनली वन आई कैन सी, दैट इज वंशिका. व्हाट अबाउट द अदर्स? तेजस्वी, why your cameras are not on? अब मुझे बताओ एक मिनट, क्लास में जब क्लास चलते तब आप करते क्या हो? अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो फिर आपको शर्म किस बात की है अगर आपकी कैमरा ऑन है? बताओ मुझे, आपको किस बात की शर्म लगते हैं कि अगर आपके कैमरा ऑन है तो आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई मतलब मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ कैमरा चालू करके क्लास के टाइम पे, तो फिर कैमरा चालू होगा तो हम पकड़े जाएंगे? कोई सोता है, कोई खाता है, कोई जाके कुछ खेलता है, कुछ ना कुछ तो करते हैं 100%. तभी आप लोग कैमरा बंद कर देते हो, नहीं तो क्यों कैमरा बंद कर देते हो? देखो अभी भी वेयर इज दिस अर्शिद, निखिल, शिरीन, अर्नब, काव्या, प्रणब का तो खराब है, हर्षिता पठानिया, रजनी शर्मा, अनुष्का, वंशिता, पंडिता, क्रिस, ये लोग कहाँ हैं अभी मुझे नहीं पता. ये लोग कहीं गायब हैं. कुछ लोग तो लॉगिन करके गायब हो जाते हैं. चलो तो फिर जिस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी डिसीजन हो, when you are taking a very important decision of life, it is not easy to take that decision. मीन्स झटाक से ले लो, अचानक से मुझे मन हुआ कि मुझे एक काम कर लेते हैं ना, ये कर लेता हूँ और मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ. ये चीज किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है. सो द ट्रैवलर, वो जो ट्रैवलर थे वो खड़े होकर सोच रहे थे कि भाई इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, मेरे पास दो चॉइस है. कौन सा दोनों चॉइस? उसमें हम आ रहे थे. And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ये मैं bent in the undergrowth बोले तो ऐसे करके जाके ऐसे bend हो गया. bend हो जाने पे मतलब जहां तक मुझे नजर जा रहा है उसके बाद bend हो गया, वहां तक वो देख रहे थे, दोनों रास्ते को देख रहे थे. What is the meaning of means watching both the roads? क्या मतलब होता है? Exactly, जो तुम्हारे possibilities है दोनों options का. मानो
as you have joined the coaching center, so you have two options basically, one is medical, one is non medical, है ना? तो आप लोग क्या देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मतलब क्या है, ऑब्जर्व करेंगे कि अपनी लाइफ जो है वो कि मेडिकल में अगर मुझे मेडिकल लेना है, मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे नॉन मेडिकल लेना है क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, इससे मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ और क्या क्या ऑप्शंस है मेरे लिए इसके लिए, दैट इज द थिंग। और वो भी खड़ा होकर ना वही चीज कर रहा, दोनों चीज वो देख रहा था, जहां तक जितना दूर तक वो सोच पा रहे। जैसे आप मानो आप सोचने लगोगे कि भाई मैं अगर डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं इंजीनियर बन गया मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, पहुंच सकता हूँ। दीज आर द ऑप्शंस एंड इट इज नॉट इजी टू चूज आउट ऑफ दिस टू, सो एज द ट्रैवलर वो वहां पे खड़ा होके देख लेते हैं। just as fair, underline करो, just as fair, just as fair, just as fair मतलब as fair as fair as, just as fair जो लिखा हुआ है as fair as to where हाँ बताओ। So it means मतलब वो जहां तक देख सकता है उसने वहां तक देख। उसके बाद just as fair लिखा हुआ क्यों है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, and look down one अंडरलाइन कर लो, one आप समझ में आ जाएगा। as far as I could to where it bent in the undergrowth, just as fair. Sir, because they were both good choices. क्या बोल रहे हो? Because both were good choices. But I am not getting what you are saying. फेयर मतलब साफ, उतना ही आकर्षक। यहाँ पे मतलब कि वो देखना कि जो रोड्स है वो ऑब्जर्व कराकर कि कौन सी रोड में मेरे को मतलब कौन सा रोड में। he is actually comparing with the first one, the second one is as fair as the first one, as attractive as the first one। जो दूसरे वाला है वो पहले वाले जैसे ही एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव है। क्या पर क्या है, नेक्स्ट लाइन पे आता है, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same। क्या मतलब, आप ट्राई करो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू Sir, टेक्स दिस वन हैविंग सम, आपके पास बुक तो मैं आपको पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। कहाँ गया, and look down one as far as I could where it bent in the undergrowth, just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same। So जो कोई को वो yes अर्नब करेक्ट, अर्नब अली करेक्ट, सही बोले हो, बोलो। कोई ग्रासी रोड था, जो एक था, एक रोड में ग्रासी था और मतलब उधर ड्राई वाइट्स मतलब वो लीव्स जो थे पैर में टोटल के बाद काले हो गए थे, तो ये वहाँ बहुत से लोग चले हैं, बहुत कम बनवा वहाँ से चलते। और दूसरा वो स्मूथ था जिसको ये बहुत ज्यादा बंदे वहाँ से चल चुके हैं। और जो कोई को किसमें इंटरेस्ट है, कोई को ग्रासी वाले में इंटरेस्ट है कि वहाँ वो एडवेंचर पाएगा, कोई को लग रहा है कि एक्साइटिंग होंगे। यस, तो उनको दोनों जो ऑप्शन मिले हैं, ठीक है ना। जस्ट नेक्स्ट लाइन में पढ़ लेता हूँ तो फिर और आसान होगा। नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्केप एंड ट्रॉडन ब्लैक। ये दोनों रास्ता सुबह सुबह एक जैसे लग रहे हैं, उसमें एक जो रास्ता है नो लिव्स फॉलन ट्रॉडन बैक, मतलब क्या है कि उसमें ऐसा कोई भी पत्ते नहीं दिख रहे। आप मुझे कभी सुबह सुबह उठ के पेड़ों से ढका हुआ कोई रोड है, कुछ है, उसके तरफ ऐसे रास्ते पे चले हो?
Yes, Rajni, correct. बेटा इट इज नॉट ओनली 2 मीनिंग्स, इसमें ना और ज्यादा कुछ है। एक तो कंप्लीटली एक एंगल है जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्लास 9 में, वो है उनके फ्रेंड वाला एक एंगल है जो अभी नहीं पढ़ाए जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो चीज मतलब सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ एंड द पोएम। इस पोएम जो है, दिस पोएम इज कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड मेटाफोर ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ में कैसे इस चीज को कंपेयर किया जा रहा है, पोएम को लाइफ के साथ कैसे कंपेयर किया जा रहा है, हम मेनली इसी पर्सपेक्टिव पे करेंगे, दूसरे वाले तो हम लोग जाएंगे भी नहीं। मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ कि कभी ऐसे कोई रास्ते से आप गए हो सुबह सुबह, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो और पेड़ के पत्ते रात भर गिरे हो, अगर वहां पे सुबह कोई चल के जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, वो पेड़ के जो पत्ते हैं वो पैर के नीचे आएगा, पैर के नीचे कुचल के वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। ठीक है ना, ऐसे अगर दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट डज दैट मीन, उस रास्ते में कोई गए नहीं, तभी पैर के नीचे वो कुचला नहीं। अगर दिखाई नहीं, काला दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या है, उस रास्ते से गए नहीं और वो किसी ने कुचला नहीं। व्हाट डज दैट मीन, दैट हु सेड यस अर्नब, दैट व्हाट यू रोट ना, वही है कि ये वो करियर ऑप्शन है जो बहुत कम लोगों द्वारा ऑप्ट किया गया है, वो करियर ऑप्शन है। मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए क्या बोला था, राइटिंग पोएट्री टू बिकम अ पोएट। कितने लोग हैं आज के दिन में या उनके समय पे जो ऑथर बनना चाहते हैं और पोएट बनना चाहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। एंड व्हाट ही हैज चोजन द पाथ दैट इज लेस ट्रैवल्ड बाय, मतलब क्या, कम लोगों ने उस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को ऑप्ट किया है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद कंप्लीटली दूसरे फेज में बताया जा रहा है। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. ये वाले लाइन पूरे को अंडरलाइन करो, I doubted if I should ever come back. उन्होंने दूसरे वाले चॉइस तो दूसरों का दिया, डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा अगर ये गलत, क्या मैं आ पाऊंगा, नहीं, उनको एकदम क्लियर है कि दोबारा वापस आके दूसरे वाले रास्ते में मैं नहीं जा सकता। और जिस रास्ते में मुझे मैंने जो वंस, आर यू सेइंग समथिंग? Yes, sir. बताओ, Sir, this statement, sir. तेज, थोड़ा तेज आवाज में। Sir, he knew that, sir, if he will choose the, if A he little will, louder बेटा, little louder। sir, इसकी मैं वॉल्यूम फुल है बेटा, इसकी वॉल्यूम फुल है पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। टेल मी। डिस्कनेक्ट हो गया कि जब वो उस जगह पे खड़े होके, उस पर्टिकुलर जॉइंट पे खड़े होके, व्हेन ही वाज थिंकिंग टू चूज द अदर वन, तब उसको लगा कि मैं अगर इसको चूज कर लेता हूँ, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही होगा, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ही कैन नेवर कम बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज जर्नी वन मोर टाइम। लाइफ हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड ईयर्स है हमारी जिंदगी में, हम 200-400 साल जिएंगे। तो एक काम कर लेते, पहले 30-35-40 साल हम एक तरफ में दे देते हैं, अगर उसके बाद उसमें सक्सेस नहीं मिला फिर दोबारा शुरू कर देंगे। You are having a particular age to set your career, isn't it? ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल की उम्र में सोच लिया कि मुझे तो इंजीनियर बनना है और 20 साल से 40 साल तक आप उसी में लगे हैं, ठीक है, और 40 साल के बाद अचानक लगे कि नहीं यार इंजीनियर बनना मजा नहीं आ रहा है, हम डॉक्टर बन जाते हैं। एंड आफ्टर 40 यू स्टार्टेड प्रिपरेशन टू बी अ डॉक्टर। इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है किसी के लिए? किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, yes, he knew that the path he will choose, beta, he will choose, will make all the difference, definitely
उसको पता ये उस समय पे नहीं था, ये पता उसको कब हुआ, जब उसने चूज कर लिया। वंस जो बोल रहे हो ना नेक्स्ट लाइन पे, ये लेटर पार्ट में हुआ है। वहां पे उसका बस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका सोच में क्या था, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ठीक है, कि मैं दोबारा वापस आके यहीं से शुरू कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है ना। आफ्टर दैट रोड्स गो ऑन व्हाइल वी फॉरगेट एंड आर फॉरगेटन लाइक अ स्टार। सॉरी, ये इसका लाइन नहीं है, सॉरी, मैं दूसरे पोइम के I shall be telling this with a shy. Somewhere, ages and ages hence, the two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. यहाँ से underline करोगे. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ठीक है, ये वाले लेटर पार्ट में बताया गया। ये दूसरा हब है। पहले हब में क्या था, उसने उस जगह पे खड़ा हुआ, उसने सोचा और उसने अपना चॉइस बना लिया। ठीक है, अब वो उसने चूज कर लिया, कर लेने के बाद उसको सक्सेस नहीं मिला। ठीक है ना, तब ही इज सेइंग विद अ शाई। शाई का मतलब लंबे सांस छोड़ना। कब हम लोग लंबे सांस छोड़ते हैं, जब हम कोई चीज को लेकर रिग्रेट करते हैं, जब हम कोई चीज को लेकर खुश नहीं होते, जब कोई चीज हमें मतलब प्रॉपरली उस चीज को हमें अच्छा नहीं लगता, तब हम लंबे सांस छोड़ते हैं ना। उन्होंने भी विद अ शाई कि रिग्रेटेड एक्चुअली कि आज मेरी जिंदगी अगर अलग है, उस दिन में मैंने जो चॉइस ऑप्ट किया था, उस पर्टिकुलर डे में जो चॉइस हमने ऑप्ट किया था, अगर हम उस दिन में उस चॉइस को ऑप्ट नहीं करते तो काश, तो शायद आज मेरी जो जिंदगी है कुछ अलग होती। ठीक है ना, आज ये मेरी जो जिंदगी है ये कुछ अलग होती। क्यों अलग नहीं है, बिकॉज आई वॉज द वन हु हैज चोजन द अदर वन। दूसरे वाले हम छोड़ दिए थे। यस रजनी, करेक्ट, ही वाज रिग्रेटिंग द डिसीजन एट द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में वो तो सोच रहा था करूंगा कि नहीं करूंगा, एंड उसका डाउट था कि मैं दोबारा शुरू नहीं कर सकता। और दूसरे में क्या हो रहा है, ही वाज रिग्रेटिंग हिज डिसीजन कि मैंने जो किया था, बिकॉज आई टोल्ड यू पीपल के द ऑनर दैट he received all those things were posthumous, वो जीते जी उनको नहीं मिला। ठीक है, दिस इज द पोएम। व्हाट यू पीपल विल डू कि आप इस पोएम को एक बार अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे आप मुझे पूछोगे अगर आपको कोई डाउट है। नहीं है तो इसकी जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस वगैरह है ना, इसको मतलब मैं आपको एज ए नोट्स बना के दे दूंगा। ठीक है ना, आपको भी मिल जाएगा सारे आप लोगों को इसकी नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, वर्ड मीनिंग, और डिटेल ये जा रहे देंगे जो आपको पढ़ना है, लर्न करना है। समझने वाली पार्ट ये है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ दैट दिस पर्टिकुलर पोएम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर ऑफ लाइफ। ठीक है ना, लाइफ के साथ इसकी कंपैरिजन किया जा रहा है। एक बंदा जो अपनी जिंदगी में एक दुविधा में आके खड़े हो गए, उनके अपनी लाइफ को आगे किस तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, एक रोज को सिंबलाइज किया गया है, रोड के साथ कंपेयर किया गया, जो दो हिस्से में बट गए, बाइफरकेट हो गए। खड़े होकर वो सोचने लगे कि इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। बहुत टाइम सोचने के बाद उन्होंने वो वाली चूज कर ली जो कम लोगों ने चूज किया था। ठीक है, कम लोगों ने ऑप्ट किया था, और उसके चूज करते वक्त उसके पास डाउट था कि भाई मैं दोबारा वापस नहीं आ सकता, आके दोबारा अपनी जर्नी जीरो से शुरू नहीं कर सकता। और उसके बाद नेक्स्ट हाफ में उनकी जर्नी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रही, तो ही वाज रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। ठीक है, कि आज मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम बोलो क्या बोलो, उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आज मेरी लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी सिचुएशन है, ऑल दोस थिंग्स बिकॉज ऑफ द चॉइस दैट आई हैव मेड। ठीक है, दैट इज द समरी ऑफ द होल पोएम। उसके बाद आप पढ़ के आपको कोई भी चीज डाउट रहेंगे नेक्स्ट दिन आप पूछेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। मैंने आपको जैसे बोला था कि हम लोग सीबीएसई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो उसकी जो एक पार्ट है सीबीएसई ने निकाल दिया, वॉइस का जो पार्ट है ना सीबीएसई अभी सिलेबस से निकाल दिया, उसको हम लोग को करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई वाज चेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है।
है ना, तो उसको हम लोग भले ही सीबीएसई ने निकाल दिया पर हम लोग उसको थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु विल टेल मी, तो कुछ लिखेंगे दिखाई भी नहीं देगा। इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बोर्ड आपके लिए विजिबल है? नो सर। नहीं है ना। चलो हम लोग थोड़ा सा, एक्चुअली क्लासरूम सारे क्लासरूम ऑक्युपाइड हैं, इसलिए मैं ऑफिस में से क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको जो चीज पूछ रहा हूँ मुझे थोड़ा सा बताओ, देखते हैं। Who will tell me, though you will never get a question in your exam, what is voice? ठीक है, what is voice? You will get never a question in your exam, but you must know what it is. नहीं, no, it's not biology class. This is English class. Okay, in biology, definitely the vibration that comes out from your throat is the voice. हम वो पूछ ही नहीं रहे। नहीं, who can tell me what voice is in English grammar? Voice क्या होता है? टाइम ऑफ स्पीच? ना रे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज वॉइस? नहीं नहीं, Is the board visible now? नहीं रजनी, ऐसा नहीं है। The board is visible now, I hope. यस सर। Okay. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इससे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Two sentences I have written. You can see it. दिखाई दे रहा है? Beta, can you see this? The board? यस सर। Okay. You tell me what is the difference construction wise between these two sentences? Construction wise. मैं आपको explain कर रहा हूँ. These two things are same? Yeah. Right. This is also same? This is a word जो बाहर से आया है, ठीक है, ये यहाँ पे था ही। Then what is the difference? It and is eaten, right? ये difference है, and all of you know that this is active voice and this is passive voice. ये आपको तो पता है। बीच में से difference क्या है? ये है, ये है। ये eat क्या है? So from this, how can we conclude what voice is? हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज वॉइस? आप मुझे बताओ। मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया, डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया। हाउ कैन यू कंक्लूड व्हाट वॉइस इज? कौन कर सकता है? चलो राइट डाउन, आई एम टेलिंग। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब voice is the form of verb which shows whether the subject acts or is acted upon. Voice is the form of verb which shows whether the subject acts or is acted upon. क्या है voice? मतलब क्या है? voice एक verb का form है जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये subject जो है
whether it acts और ये subject जो है is acted upon, ठीक है, whether the subject is the doer of the action or whether the subject is the receiver of the action. If the subject is the doer of the action, then the verb is said to be in active voice. If the subject is the receiver of the action, then the verb is said to be in passive voice. Simply, पर हमारे पास सिर्फ एक्टिव पैसिव नहीं होता है, कुछ और भी होता है. That क्योंकि कंपैरेटिव वाली चीजें हैं, तो हम बहुत सारी चीजों में आएंगे. आज ऑलरेडी क्लास का टाइम हो गया. आज बस इंट्रोडक्शन इतना ही करके हम छोड़ते हैं. नेक्स्ट दिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन, एनीथिंग? बस आप इतना ही करेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे. एनी क्वेश्चन एनीवन? I hope I am connected. Am I connected or not? Please confirm whether I am connected or not. Am I connected or not? Yes, sir. Okay, okay, okay. So you understood what I said? Yes, sir. Okay, beta. So today we'll end the class here only. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.